Good morning, respected chief guests, principal sir, teachers, all the guardians, and my dear friends. As we know, we are gathered here to celebrate the foundation day of our school. This is the very auspicious day for all of us as a part of this school, and very especially to our director sir, as he is the founder of this school. He has founded this school in 1992 and on this date. And I am Deepak Prajapati from class 11th, and Myself, Chanchal Lodi, I am a student of class 10th. we are very thankful to Jisan sir to give us a chance to speak here. Recently, in July, ISRO has launched Chandrayaan 3 mission, which was the very proudful moment for all the Indians. So we will today tell you about Chandrayaan 3 and missions. Let's have a look on some interesting things. इसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन को किस तरह से हमारे भारतीय वैज्ञानिक इसरो की एजेंसी से लॉन्च कर रहे हैं. Liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है. रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है. LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है. चंद्रयान 3 से के बारे में जानने से पहले हम आपको इसरो और उसके चंद्रयान 3 के पहले जो मिशंस मेन मून मिशंस रहे हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे. सो वी स्टार्ट. इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 August 1969. The headquarters of Indian Space Research Organization is in Bangalore, whose present chairman is Sridhar Somnath ji. Before ISRO, there was a preceding agency which works for science in India, was in COSPAR. There are two primary launching stations or spaceports in India. The first is SDSC, means Satish Dhawan Space Center, which is in Sriharikota, Andhra Pradesh. And the second is Thumba Equatorial Rocket Launching Station, which is in Thumba, Thiruvananthapuram, which located in Kerala state. There are three main moon missions of Indian Space Research Organization. The first is Chandrayaan 1, the second is Chandrayaan 2, and the third is Chandrayaan 3. Let's have a look on Chandrayaan missions. So, Chandrayaan first. Chandrayaan first was launched by ISRO in 2008. The launching vehicle name was PSLV-XL and the launching site was on second part SCSC, Satish Dhawan Space Center, and there are two payloads were used in this mission, lander and an impactor. This mission was ended on 28 August 2009 after having operational for almost 315 days. Now let's have a look on there were some objectives of this mission. The first is to design, develop and orbit a spacecraft around the moon surface by fully Indian made launching vehicle. The second was to conduct scientific experiments such as for mineralogical and chemical mapping of lunar surface for elements like silicon, uranium, iron, gold, etc. and to increase scientific knowledge or to prepare the 3D atlas to both and near and far sides of the moon surface. हमारा जो फर्स्ट जो मिशन था ये एक टेस्टिंग थी कि हमारे जो फर्स्ट पहली बार हमने इंडिया की टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ जो हमारा स्पेस लॉन्चिंग था, हमारा जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल था वो सक्सेस होता है या नहीं. तो बहुत गर्व की बात यह थी कि हम चंद्रयान फर्स्ट मिशन में सक्सेस हुए थे. सो वी वर सक्सेसफुल इन द चंद्रयान फर्स्ट मिशन. Now let's have a look on Chandrayaan 2 mission. Chandrayaan second was launched on 22 July 2019 and launching vehicle name was LVM-3 and the launching site was on
second pad Satish Dhawan Space Center, same as Chandrayaan first. There are 3 orbits were used in this mission: orbiters and lander named as Vikram and the rover named as Pragyan. But unfortunately, this mission was failed due to the hard landing on the moon surface. ये जो सेकंड मून मिशन है यह फेल हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हार नहीं मानी। सेकंड मून मिशन फेल होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। जो उनकी गलतियां रही थी मून मिशन सेकंड में, उन्होंने उनको सुधारा, उन पर वर्क किया और आगे चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया। तो आप लोगों ने देखा कि हार्ड लैंडिंग की वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हो गया था, बट इंडियन साइंटिस्ट की लगातार मेहनत, हार्ड वर्क के बाद चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। फेल होने का मतलब यह नहीं कि अब हम हार मान जाए किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क जो हम कर रहे हैं जिसमें सक्सेस पाना चाहते हैं उसमें अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, बट फेल इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये हमारे सीखने के, हमारे प्रयास का पहला कदम होता है। फेल का मतलब यह नहीं कि हम किसी भी चीज को क्विट कर दें, छोड़ दें, बट वी शुड ट्राई एंड ट्राई अंटिल वी गॉट सक्सेस। सो चंद्रयान 3 मिशन को हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद 615 करोड़ की लागत से बनाया हुआ चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 को लॉन्च कर दिया। But some critics said that this is the wastage of money. But in my opinion, this is not the wastage of money. But this is the सदुपयोग of money. ये मनी का वेस्टेज नहीं बल्कि सदुपयोग है। इससे यदि हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा देश ऐसा चौथा देश होगा जो मून के सरफेस पर लैंड करेगा। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज भी कई सारे ऐसे देश हैं, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जो खुद से इतने सामर्थ्य योग्य नहीं हैं, कितने कैपेबल नहीं हैं कि खुद से अपने रॉकेट मिसाइल लॉन्च कर सकें, अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें। तो वो लोग, यदि हम इसमें सक्सेस पा लेते हैं तो जो अदर कंट्रीज़ हैं जो खुद से कैपेबल नहीं हैं वो हमारी हेल्प से अपने रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स को वहाँ पर सैटेलाइट में भेजेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। वो हमारी जो साइंटिफिक एजेंसी इसरो उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हाल ही में 31 जुलाई 2023 को सिंगापुर ने इसरो की सहायता से, इसरो जो हमारी साइंटिफिक एजेंसी है उसकी सहायता से 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। इस तरह से यदि हम इसमें सक्सेस पा लेते हैं तो कई सारे देश हमारे इसरो की हेल्प से अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स को, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और साथ ही इस मिशन के सक्सेस होने से इस जो पैसा हमारा 615 करोड़ रुपए की लागत आई है, इससे सिर्फ पैसा खर्च ही नहीं हुआ बल्कि हमारी साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ेगी। हमारा इंडिया की जो वैज्ञानिक क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव आएगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे हमारे साइंटिस्ट, और इससे हमारे देश का नाम संपूर्ण देश में, संपूर्ण संसार में हो जाएगा। और इस मिशन के सक्सेस होने से जो यूनिवर्स है उसके कई सारे रहस्य के द्वार भी खुल सकते हैं। सो दिस इज द सदुपयोग ऑफ मनी, नॉट द वेस्टेज। एंड दिस मिशन इज सेट एज टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून सरफेस। इस मिशन को भारतीय साइंटिस्टों ने मून के साउथ पोल पर लैंड करने इस तरह से सेट किया है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। आज तक सिर्फ और सिर्फ जो 3 कंट्रियां हैं जो मून के सरफेस तक पहुंची हैं वो सिर्फ नॉर्थ पोल तक ही जा पाई हैं, बट आज तक कोई भी साउथ पोल में, मून के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। बट यदि हम इस मिशन में सक्सेस पा लेते हैं, इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारा भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल को डिस्कवर करेगा। हमारा देश संपूर्ण संसार में, हमारे देश का नाम हो जाएगा, हमारे वैज्ञानिक क्षमता का हम दिखा सकेंगे कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इस तरह से हमारा भारत विश्व गुरु के पथ पर लगातार अग्रसर रहेगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस मिशन इज the Chandrayaan 3 will insert the orbit of moon within 42 days। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मून के ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान 3 है वो 42 दिनों में पहुंच जाएगा। एंड देयर आर 2 पेलोड्स which are used in this mission। The first is Vikram which is a lander and the other is rover which named Pragyan।
So lander is a machine which will land on the moon surface after reaching there. वहां पर पहुंचकर लैंडर जो है मून के सरफेस पर लैंड करेगा एंड द रोवर विच इज फिट इनसाइड द लैंडर, जो रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, जो कि हमारे लैंडर के अंदर फिट है, वो मून के सरफेस पर पहुंचकर वहां से बाहर आएगा एंड मून को के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा. डेट विल एक्सप्लोर द मून सरफेस, डेट विल फाइंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ लाइफ. वहाँ पर जाकर जीवन की क्या वहाँ शुरुआत की जा सकती है या वहाँ पर पानी उपस्थित है. इस तरह से हमारा जो लैंडर और रोवर की हेल्प से वो लोग हमें वहाँ के जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके सिग्नल हमें यहाँ इंडिया को साइंटिस्ट के पास इसरो में भेजेंगे, जिससे हमारा साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी. एंड देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन. द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस. पहला जो उद्देश्य है हमारा यही है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून के साउथ पोल पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो, अच्छे से लैंड कर जाए, जिससे हमारे मिशन को हमें सक्सेस हो सके. एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व द रोवर्स कैपेबल लॉइटरिंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून सरफेस. हमारा जो रोवर है प्रज्ञान वो किस तरह से मून के सरफेस पर वर्क करता है, इसको हम फाइंड कर सके. ये भी हमारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. यदि हमारा रोवर जो प्रज्ञान है वो अच्छे से वर्क करता है मून के सरफेस पर, तो हमें यूनिवर्स में मतलब कि अर्थ से बाहर भेजने के लिए इंसानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हमारी मशीन्स ही वहाँ जाया करेंगी, वही वहाँ के वहाँ जो वातावरण है उसको ऑब्जर्व करेंगी और वहाँ से हमें मैसेजेस भेजेंगी, जिससे हमारी जो साइंस है वो बहुत आगे बढ़ेगी. हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे. वहाँ पर हमारी जो मशीन्स हैं वो ही फिर अंतरिक्ष में जाया करेंगी और रिसर्च किया करेंगी. एंड द मिशन इन चार्ज ऑफ दिस मिशन इज ऋतु करिधाल जी. शी इज ऋतु करिधाल. यह एक महिला है. इन्होंने चंद्रयान 3 के साथ साथ मंगल मिशन की भी है इंचार्ज रही हैं. इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मंगल मिशन के साथ साथ. इन्होंने चंद्रयान 3 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये मंगल मिशन की भी इंचार्ज रही हैं और ये चंद्रयान 3 की भी लॉन्चिंग इंचार्ज रही हैं. ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम महिलाओं के लिए. ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स है, जितनी भी टीचर्स लेडीज है, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है. महिलाएं इस देश में बहुत आगे बढ़ रही हैं और हमें और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऋतु करिधाल जी है. हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. Now we will see the whole journey of Chandrayaan 3 mission by the 3D animated video. हम एक वीडियो के जरिए चंद्रयान 3 की whole journey देखेंगे कि किस तरह से चंद्रयान 3 अर्थ से लेकर मून तक की जर्नी देखेंगे, किस तरह से वो लॉन्च होगा, किस तरह से वहाँ लैंड करेगा और किस तरह से जो हमारा प्रज्ञान है वो वहाँ पर एक्सप्लोर करेगा, मून के सरफेस की जांच करेगा. सो वी विल सी सर. ये एक 3D एनिमेटेड वीडियो है जिसमें आप उसकी चंद्रयान 3 की हुल जर्नी देखेंगे. 6, 5, 4, 3, 2. इस मिसाइल में 2 विकास इंजन्स का यूज किया गया है जो कि बीच में शिफ्ट है. ये जो अगल बगल लगे हुए हैं ये या इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ले जाएंगे, उसके बाद ये इस रॉकेट से अलग हो जाएंगे. देन जो हमारा विकास इंजन है इस तरह से देख सकते हैं आप, जो रॉकेट्स थे हमारे अलग हो चुके हैं, अब विकास इंजन भी अलग हो जाएगा और फिर लैंडर और रोवर जाएंगे मून के सरफेस पर. मून के ऑर्बिट में आकर विकास इंजन भी अलग हो जाएगा. देख सकते हैं कितना शानदार वीडियो है. हमें किस तरह से चंद्रयान 3 मिशन के बारे में दिखाया जा रहा है. ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए हमारे उनके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है. देख सकते हैं आप किस तरह से जो हमारा चंद्रयान है वो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है. देख रहे हैं कैसे जो हमारा चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट की तरफ चारों ओर घूम रहा है.
अब अर्थ से मून के ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 3 है वो जाएगा। आपने देखा किस तरह से अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में पहुंचा है हमारा चंद्रयान। देख सकते हैं मून के ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान 3 है वो उसके ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। अब विक्रम अलग हो जाएगा और ऑर्बिट में जाकर शिफ्ट हो। अब विक्रम मून के सरफेस को ऑब्जर्व करते हुए अपनी जो वहां पर जिसको लैंडिंग होना लैंडिंग साइट को ऑब्जर्व करेगा और वहां पर लैंड कर जाएगा। आप देख सकते हैं विक्रम जो हमारी लैंडिंग साइट को ऑब्जर्व कर रहा है मून के सरफेस पर। आखिरकार सक्सेसफुली हमारे विक्रम ने लैंड कर दिया है। अब इसमें से रोवर जो हमारा प्रज्ञान है वो बाहर आएगा और मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। फाइनली हमारा रोवर बाहर आ चुका है। वहां पर करीब 14 दिनों की जर्नी रहने वाली है हमारे प्रज्ञान की। 14 दिनों तक मून के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा प्रज्ञान। आप लोगों ने देखा किस तरह से लैंडर और रोवर ने मून के सरफेस को एक्सप्लोर किया, हमारे पास सिग्नल्स भेजे। ये सारी जर्नी होने वाली है, एक फीचर एनिमेटेड वीडियो है जो इसके लिए हम कामना करना चाहिए हमें कि हमारे इस मिशन की सक्सेस हो जाए। तो इस तरह से जो लैंडर रोवर वर्क करेंगे उनका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको दर्शाने के लिए इस वीडियो को दिखाया आप लोगों को। कामना करता हूं कि आप लोग भी हमारे वैज्ञानिक जो मिशन रहा है हमारा चंद्रयान 3 इसकी कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इस मिशन की सक्सेस हमारे देश का नाम बढ़ा देगी और हमारे जो कल के वैज्ञानिक हैं, जो आज मेरे छोटे मोटे दोस्त भाई बहन हैं, वो लोग जो कल के वैज्ञानिक बनने वाले हैं वो इस मिशन के आगे और भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे और हमारे